So hello and a very good evening YouTube. How are you all? Finally got time for a second vlog in a week. Slowly freeing up. Oh boy, that blow off valve sounds crazy. आज ऐसी रैंडमली दिल बोला रात में निकलेंगे, एक छोटा सा राउंड मारेंगे शहर का, बिकॉज द कॉप्स हैव बिकम टू फकिंग स्ट्रिक्ट इन Hyderabad nowadays. Comment down below how the situation is in your city when it comes to, you know, bikes with exhaust and shit. But yeah, आज निकले एक छोटा राउंड मारने वाला. चलो कैमरा लगाएंगे, कुछ तो एक ब्लॉग शूट करेंगे आज. एंड लव एंड रिलेशनशिप्स, लास्ट टाइम आई हैड मेड दिस व्लॉग वाज, आज ही देख रहा था मैं, अराउंड लाइक 5-6 years ago. यू नो, जब एक डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस थे एंड लॉट ऑफ पीपल कुड रिलेट to what I was saying. And you know, as of now, fucking 31 years old now, at this stage, अब वो टाइम पे डेटिंग वेटिंग का चालू था. अब ये टाइम पे सब जनों के शादियाँ हो गए, बच्चे हो गए, थोड़े जनों के डिवोर्स हो रहे, थोड़े जनों के, you know. And if you guys see my Instagram, you know, my love life has never been, you know, more dramatic. So with all these experiences, I thought, why not, you know, put it out there. आप लोगों को दिखता होगा, like I said in the previous vlog, you know, अगर किसी को बोरिंग दिख रहा है या कुछ, क्या रे भाई ने आके, यू नो, रंडी रोना कर रहा बोले, तो इट्स ओके, यू कैन, यू नो, ऑलवेज वॉच सम अदर वीडियो. बट या, फॉर मी, I had moved away from YouTube and I realized only later that this is the best form of therapy for me. You know, letting it out there, putting it out there, my experiences and everything, sharing it with you guys gives me a form of, you know, pleasure and satisfaction. And also आप लोगों से भी कुछ शेयर करे जैसा हो जाता. तो let's grab some chai and head towards Tuli Choki and continue the rest. यार लाइफ में हमेशा कुछ प्लान करते कुछ और होता. आज सोचे निकले ज़रा अच्छी कॉफ़ी मारेंगे, तो कॉफ़ी का अड्डा बंद, फिर मालूम हुआ गच्चीबोली पे दबा के पुलिस के चेक पोस्ट हैं. सो नाउ हेडिंग बैक होम. आई थिंक अनफॉर्चुनेटली दिस व्लॉग ऑल्सो हैज़ टू बी डन on the same stretch of road that I've been vlogging on since the past, I don't remember, countless months. So yeah, let's begin. Love and relationships. As a fucking 30-year-old, so let me first begin by saying, you know, मेरे को खुशी होती कि, you know, थोड़ा रिग्रेट भी रहता कि मैं फुली कमर्शियल गया नहीं मोटो व्लॉगिंग में. बट कमेंट्स देखता हूँ तो खुशी भी होती कि, you know, lot of people genuinely enjoy watching what I post, what advice I give. And you know, lot of you can relate because I feel that all of you have grown up alongside me. मैं अपन भी कोई बड़े अडल्ट नहीं है, अपन आज भी बच्चे ही है. बट या, इन द प्रोसेस ऑफ मी ऑल्सो ग्रोइंग अप, लर्निंग अ लॉट अबाउट लाइफ. आप लोग भी बड़े हुए, आप लोगों के भी लाइफ के, यू नो, कई चीज़ें चेंज हुए. तो एट एवरी पॉइंट, यू नो, डिफरेंट एज के हिसाब से आई कैन गिव सम एडवाइस. तो या, व्हाट एडवाइस डू आई हैव ऑन दिस? लेट मी फर्स्ट बिगिन बाई सेइंग, यू नो, 20s में कैसा रहता है, डेटिंग, हार्ट ब्रेक्स, ये सब चलता है. एज सून एज यूर इन योर 30s एज अ गाय, you have friends who are married, you have friends who are, you know, trying to get divorced, you have friends who are eagerly searching to get married, you have friends who are staying in live-in relationships and all of that. And 30s, I feel, now I don't want to sound misogynistic, but it's the most prime age for a man. 20s mein you have your youngness, your purti, but you're broke as fuck. In your 30s you're somewhat established, आपको थोड़ी दुनियादारी आती, थोड़ा बहुत पैसा रहता, इंडिपेंडेंस रहता, and you're still not too old. So, you know, you have girls in the 20s, you have women in their 40s, and you know, a lot of options out there. So yeah, but for a woman, 20s is like her prime. You know, a guy in his 30s and a woman in her 20s, their primes. औरत बेचारी 30 क्रॉस करते कि परेशानी हो जाती है. नो, लॉट ऑफ पीपल, आई डोंट नो हर सिटी का क्या हाल है, बट यहाँ पे तो, यू नो, लॉट ऑफ गर्ल्स, whatever they do, and you know, they try to settle down, get married
into happy homes before crossing 30. एक पुल ले ही लेंगे. Oh man, the blow off valve sounds excellent. So yeah, what are my experiences? पिछले 5 साल में एक चीज़ मैं सीखा कि प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें है इम्पोर्टेंट, नो डाउट, बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज it's a very big step of your life and there is no perfect formula, just like in dating there's no perfect formula in marriage, but प्यार में जबकि emotions butterflies ये वो रहते, marriage is a lot more about compromise. आप एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग रहना, बॉन्डिंग रहना. एंड डेटिंग इज समथिंग 2-3 साल डेट करे, 5 साल डेट करे, लोग 10 साल डेट करके भी ब्रेकअप कर लेते. मैरिज आई फील दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाओ, अपन थोड़े ओल्ड स्कूल ख्याल के, शादी एक ही बार होती भाई. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, स्पेशली इन दिस डे एंड एज वेयर देयर इज लॉट्स ऑफ स्कैमा है, झूठा है, सब है. सो यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव. There's nothing wrong in being selfish because ज़िंदगी का फर्स्ट हाफ माँ बाप के साथ गुजरता, माँ बाप सब कुछ रहते, बट as soon as you get married, slowly is the sad truth of life, it's just you and your partner. आपको मरना उनके साथ ही है. So it's not a small decision कि भाई प्यार हो गया, शादी कर लिए. Lot of things, families have to get along, you have to get along, and सबसे important चीज़ maintaining honesty is the most important thing. आप ये सोचेंगे कि मैं चीज़ें छुपाऊंगा. कई जने बोलते थे को शादी हो गई बात सुधर जाता बोल के. भाई आप सुधरने के चक्कर में आपकी लाइफ भी लौड़े लग जाती है, सामने वाले की भी ज़िंदगी आप ख़राब कर देते. वाई स्पॉइल 2 lives. आई एम 31 अनमैरिड. आई हैव नो रिग्रेट्स बिकॉज इंसान कभी भी शादी नहीं करके नहीं मरता. गलत शादी करके बहुत जने मर गए. सो खानदाना लुट जाते, सेविंगा चले आते, सुसाइडा हो जाते. ऑल दैट शिट हैपेंस बिकॉज लोग बिना कैलकुलेटिव रहे बस इमोशंस के ऊपर ले लेके शादी कर लेते. अगेन पेयर्स आर मेड इन हेवन, दैट्स व्हाट दे से. आप कितने भी कैलकुलेशंस करो, कुछ भी करो, इफ समथिंग बैड हैज़ टू हैपन इट विल हैपन, इफ समथिंग गुड हैज़ टू स्टे इट विल स्टे. बट अगेन भाई अपन थोड़ा बहुत अपने तरफ से जितना प्रिकॉशन ले लिए, थोड़ा तो अपन कैलकुलेट कर लिए तो अच्छा रहता. सो टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स हु आर नाउ एट एन एज वेयर दे आर लुकिंग टू गेट मैरिड, सोच समझ के करो. ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज करे तो फेल होती, घर वालों की पसंद से करे तो अच्छी रहती, या घर वालों की पसंद से करे तो फेल. वो सब चुतिया बातें हैं. एंड ऑफ द डे फॉर अ मैरिज टू वर्क इट्स यू एंड योर पार्टनर, एंड एक हद तक एक दूसरे के फैमिलीज. मैं तो पर्सनली बोलता हूँ कि इट्स जस्ट बिटवीन 2 people, बट लॉट ऑफ विमेन they keep sharing shit with their sisters, their mothers, खाला फूफू. बेडरूम की चीज़ें बेडरूम तक रखे तो रिलेशन बहुत अच्छी रहती. as soon as you start involving third parties, अपने माँ बाप को भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होते ही होते. बिकॉज आज देखो आपके माँ बाप की ज़िंदगी में उनके माँ बाप का क्या रोल है. आई एम प्रीटी श्योर नॉट मच. सो सब मिलजुल के रहना वो सब है, बट माई पॉइंट इज़ के कपल्स के बीच के जो बातें रहते हैं कपल्स के बीच में ही रहना, इनसे उनसे डिस्कस नहीं कर लेना. कम्युनिकेशन इज़ द की. यू सिट, यू टॉक, यू डोंट लाइक समथिंग, टॉक इट आउट, पुट इट आउट देयर, बी ऑनेस्ट. चीज़ें छुपा के झूठ बोल के मे बी टाइम विल फिक्स इट बोले तो नहीं, टाइम विल ओनली मेक इट वर्स. एंड कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों तरफ से रहते भाई, बिकॉज डेटिंग में आप एंड ऑफ द डे आप एक घर में नहीं रह रहे, तो रोज़ सुबह को इंसान के साथ नहीं उठ रहे. वो बॉलीवुड मूवीज़ में बता देते अरे बुल्ला नींद में से उठते किस कर ले रहे भाई, मुँहों की बदबू आती सो यू कैन नॉट बेसिकली यू कैन नॉट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट एंड इंस्टाग्राम रील्स के हैप्पी मैरिड लाइफ ऐसी रहती बोल के. व्हेन यू आर एक्चुअली लिविंग विद अ पर्सन यू गेट टू सी कि आप लोगों के छोटे छोटे हैबिट्स हो गए, एसी का टेम्परेचर हो गया, विद साइड ऑफ द बेड यू स्लीप ऑन. ये छोटे चीज़ें थोड़े बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज दे एंड अप leading to a lot bigger problems. So yeah, be prepared to compromise, guys and girls both, but at the same time don't fucking put your self respect down, because ये एक चीज़ मैं इतने साल में सीखा कि भाई प्यार सेकेंडरी है, इज्जत सबसे ऊंची है. If a girl doesn't respect you, she can never love you. It's a hard truth. The girl has to respect you, you have to respect the girl. Only then you have
लव फॉर ईच अदर। आप ना एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो बोला आपकी रिलेशनशिप इट्स अ फकिंग टिकिंग टाइम बम, 10 साल चल के भी टूट सकती है। यू नेवर नो। So yeah, I'm not gonna personally discuss about my relationships and all that. It's just whatever I learned in these past 5-6 years and अब जो मैं current situation देख रहा हूँ। And again to a lot of people जो जल्दी शादी कर लिए कि भाई शादी करके लाइफ सेटल हो जाती है। आज ऐसे भी लोग हैं जो वो बुले के बातें करें, आज कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लमों में है, डिवोर्स के वास्ते फाइल कर रहे हैं। And it's sad because a lot of people that I see have kids also. Now that's gonna be a very different topic. Probably जब मेरी शादी होंगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं व्लॉग बनाऊंगा। बट इतना तो मैं बोलता हूँ कि एट दिस एज बच्चे हो गए बाद से कुछ भी एक करो, लेकिन ट्राई टू मेक इट वर्क। इफ इट गेट्स टू टॉक्सिक इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एज गाइज गुस्से को कंट्रोल में रखो, एंड एज गर्ल्स इधर उधर मुँह नको मारो। इट्स एज सिंपल एज दैट। झूठ मत बोलो। औरतें झूठ बहुत बोलते और आदमियाँ गुस्सा बहुत करते हैं। ये कॉमन ट्रेट है। आई थिंक इट्स हार्मोनल और व्हाट, सो दैट्स समथिंग यू हैव टू गेट कंट्रोल ऑफ। बिकॉज आप ना डिवोर्स ले लेते या आप ना लड़ लेते, जो भी कर लेते भाई, मगर इस सब के बीच में बच्चों की ज़िंदगी के लड़े लग जाते हैं। सो you have to think about your kids, and I've seen also a lot of cases where couples are together only because of the kids. Now it's a great thing, but वो केमिस्ट्री नहीं रहती दोनों के बीच में, दोनों के बाहर अलग मसले चलते रहते। and kids are very perceptive, they fucking see all this, and that's why you see kids from broken families are never really stable. They are always mentally unstable. Their relationships in their lives they never tend to, उन लोगों को रिश्ता लेके चलने नहीं आता, बिकॉज माँ बाप को ही नहीं देखे हुए हैं। तो उनको वो एक दिमाग में साइकोलॉजिकली वो रहता कि हमारे लिए भी कुछ भी वर्कआउट नहीं होता, बोल के हुआ तो भी दे end up fucking it up. So yeah, I think this is a topic where there's no right wrong topics, or there's not right or wrong points नहीं है ये टॉपिक में कुछ भी। But those of you who are married, किस्मत वाले थोड़े हैं कि जिन लोगों ने जल्दी भी शादी कर ली है, जिन लोगों का सब वर्कआउट भी हो गया, they're married, they have kids, some don't have kids, they're traveling, enjoying, सबकी ज़िंदगी अलग रहती है। So दिल से खुशी है ऐसे भी सब्सक्राइबर्स के लिए जो आज शादी करके सेटल वेटल हो के एकदम सुकून में है। और जो लोग परेशान हैं, ट्राई टू मेक इट वर्क। एज आई नो बच्चा बहुत तो सख्त रहना, मुद्दे के बात आए, आदमी बहुत इमोशनल रहते, अपने को खुद मोहब्बत रहती। सो इफ़ यू लव समबडी, ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू मेक इट वर्क टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। नहीं हुआ उसके बाद it's better to walk away, but never give up on somebody you love. And 30s is a very very interesting part of your life as a guy, and एक junction है वो wherein you have to make up your mind whether you want to get married and settle down. A lot of people are married and have to decide whether they want to have kids or no, and a lot of people have to decide whether they want to be single party boys enjoying with different females every day, yeah, just stay in a living relationship. Basically एक जंक्शन है ज़िंदगी का wherein you have to make up your mind कि आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं। I'm not gonna say कि ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा गलत है। भाई सबके लाइफ के कंडीशंस अलग रहते हैं, सबकी मेंटालिटी अलग रहती है। So you wanna be a playboy, you wanna be a family man, entirely up to you. But 30s is the time where you take that decision and live up to it and stick to it, so that you don't spoil your life, others' life. And like I've said, you have to be honest. You're fucking around, be honest with the women you are. कभी भी कोई, I know it sounds very emotional and senti, but बच्ची को शादी का वादा करके चुतिया ना को बनो। शादी करना है शादी करो, you want to fuck around, you fuck around, because आजकल की मार्केट ऐसी हो गई, 80% of the girls they would rather fuck around than get married, So देख समझ के जो भी है उसूल में करो, जो भी कर रहे हैं, be a man of principles. And yeah, I don't have to tell you, few things are out of bounds. I literally have to spell it out for a lot of guys who don't know, because मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस देखा हुआ हूँ। कई छूतिए ज़िंदगी भर ऑल बॉय स्कूलों में पढ़े हुए, उन लोगों को एक्सपोजर नहीं रहता, so they don't know. There are few codes as a man you have to adhere to. Never sleep with a married woman. Never sleep with your friend's ex, current girlfriend, whatever. आपके दोस्त का ब्रेकअप भी हो गया होगा, बट आप जाके गांड नको मराओ। It's just, I know a lot of people don't adhere to this, but ये छोटे चीज़ें मैं बोलता हूँ अगर फॉलो कर लिया ना भाई, सुकून में
में रहते, यूर मैन। कहीं भी मुखा देखते घुस जाता हूँ वाली मेंटालिटी है बोले तो डजंट वर्क लाइक दैट। एंड शादी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं खुद सोच रहा हूँ ये साल या नेक्स्ट ईयर तक कर लेंगे बोल के। देन अगेन लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। देयर इज़ नो करेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस, बट या आई होप मैं जो कुछ बोला थोड़ा बहुत तो समझ में आऊँगा। भाई अपन भी कोई बड़े ज्ञानी नहीं हैं, अपन भी धोखे खा खा के सीखे सोए हैं। एंड एज ऑलवेज मैं हर चीज़ में बोलता हूँ, यू नो, एज टाइम पासिस और कई चीज़ें सीखने को मिलते हैं। प्रॉब्ली व्हेन आई डू अ पार्ट 3 ऑफ दिस, यू नो, आई विल हैव सम मोर data and input and experience, but let's hope, you know, everything works out for the better. So yeah, take care. And H2 के बारे में तो बात करने इसने मिला भाई, कितने की चीज़ें करे इसको। I have to make a separate video on that. There's a fucking blow off valve which sounds sweet. There's a transparent clutch cover. There's a carbon fiber fairing kit. Lots and lots of things that have been done. BRS 245 पे भी vlog बनाना है, you know, lot of things that my subscribers are still not aware of, don't know about. टाइम नहीं मिल रहा बड़े भाई, ज़्यादा निकल नहीं सक रहे, ज़्यादा शूट नहीं कर सक रहे, अपलोड नहीं कर सक रहे, लाइफ है, बिजी हो जाते। So yeah, take care. I think I did try to cover most of the points. Until next weekend, see you, bye bye. माँ की गिरगिरी बैगन पकड़ने गया चेक पॉइंट, एक तो रोड टैक्स बनो, इतना सब करो, फिर फटफट के चलो। आज गया पंडली चुकी। फकिंग लाइक आई सेड बिफोर, दिन के टाइम निकलना तो अजियत हो जा रही शहर में, अब रात के टाइम पे भी रोड पे एक से एक नमूने हैं। गलियों में कॉलोनियों में अजियत है ये गाड़ी लेके जाना, पूरा मोहल्ला गालियाँ देता। सर टोली चौकी बोले तो कब कौन चिच्चा आके नीचे नसीहत देना शुरू करते बोल के गांड फटी हुई रहती।